آپ کا امتحان آپ کا امتحان بچوں آج ہے آپ کا امتحان چلو دیکھ کون دے گا جواب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈز بندی چینل کے ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام، آپ کے پروگرام، آپ کے امتحان میں ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام اسٹارٹ کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. جی پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے امتحان اس پروگرام میں اکیلا نہیں ہوتا، میرے ساتھ ہوتے ہیں میرے کو ہوسٹ حسین بھائی. جی پیارے بچوں، حسین بھائی کو انوائٹ کرتے ہیں، وہ آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کون ہے ہمارے مہمان اور آج کیا کیا ہے اس پروگرام میں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ کیسے ہو؟ خیر الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کڈز مدی چینل آج تو آپ ایکسائٹیڈ ہیں تھوڑے سے؟ جی ایکسائٹیڈ تو ہوں. وجہ بھیا آئے ہیں آج پروگرام میں. پیارے بچوں، یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہاں پہ اس پروگرام کا جو فارمیٹ ہے وہ ہے تو ذرا کچھ امتحان کا، پر اس پروگرام میں نہ ہی کوئی ونر ہوگا اور نہ ہی کوئی ہارے گا. یہاں پہ ہم جو بھی امتحان لیں گے ہمارے مہمانوں کا، اس کے پیچھے آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہوگا، تو کہیں نہیں جائیے گا. آئیے پروگرام اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کا امتحان. پیارے بچوں، یہاں میں آپ کو بتانا چلوں کہ ہمارے ساتھ ایک طرف ہوتے ہیں نعت خواں حضرات اور ایک طرف ہوتے ہیں مبلغ حضرات. ان کے ساتھ ہوتے ہیں بچے جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پارٹنر، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں اور پروگرام میں ون کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے پیارے بچوں، ہمارے پہلے نعت خواں جو مہمان بھی ہیں ہمارے، ان کو دعوت دیتے ہیں، جن کا نام ہے اویس بھائی. اویس بھائی تشریف لائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، ان کے پارٹنر اویس بھائی کے جو ہیں وہ حسن بھائی، جو ہمارے حسین بھائی کے بھائی بھی ہیں. آئیے تشریف لائیے. آپ نے ان کو وقتاً فوقتاً دیگر سلسلوں میں بھی دیکھا ہوگا، پروگرامز میں دیکھا ہوگا، لائیو کرتے ہیں، ہوسٹنگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں بھائیوں کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ چھوٹی عمر سے دین کا پیغام عام کر رہے ہیں اور لوگوں کو اچھی اور بچوں کو اچھی اچھی باتیں سکھا رہے ہیں. جی پیارے بچوں، آئیے ہمارے دوسرے مہمان جو ہمارے لیفٹ جانب ہوں گے، یوسف بھائی، یوسف مدنی، جن کو آپ اسلام فار کڈز میں ہمارا اسلام سیگمنٹ کرتے دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے حضور؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. تشریف لائیے. پیارے بچوں، ان کے پارٹنر ہیں مشتاق بھائی. جی مشتاق بھائی تشریف لائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. آپ کے؟ تشریف رکھیے. الحمدللہ. جی پیارے بچوں، آئیے ہمارا پروگرام اسٹارٹ کرتے ہیں. آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے ایک لفظ ایک خیال. آپ کا امتحان آپ کا امتحان. کڈز مدی چینل کے ناظرین، اب آ چکے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کے اندر، جس کا نام ہے ایک لفظ ایک خیال. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں ہمارے مہمانوں کو ایک لفظ دوں گا اور ان کے ذہن میں جو خیال آئے گا وہ مجھے بتائیں گے. جی حسین بھائی، میری سیدھی جانب سے آپ اسٹارٹ کریں. آپ کا پہلا لفظ ہے اویس بھائی، رمضان شریف. روزے. دودھ. دودھ پینا چاہیے. کلاس. پانی ہوتا ہے. امتحان. امتحان میں اچھی کامیابی حاصل کرنی چاہیے. چشمہ. پہننا چاہیے. رحمت. اللہ کی رحمت. ماشاءاللہ. بچے. سچے. سچے. شرارتی. نہیں کرنی چاہیے. رونا. اللہ کی یاد میں رونا چاہیے. بے شک. بڑے. چھوٹے. چلیں ان کے 10 الفاظ پورے ہوئے، اب ہمارے یوسف مدنی بھائی سے کرتے ہیں. بقر عید. قربانیاں. مسکراہٹ. مسکراتے رہنا چاہیے. حافظ قرآن. قیامت کے دن اپنے اہل خانہ میں سے 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا. ایک حافظ قرآن اپنے اہل خانہ میں سے 10 افراد کی شفاعت. ایسے 10 افراد کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. واہ ماشاءاللہ. عزت. عزت دینے والی ذات اللہ کی. بے شک. بیماری. اللہ تعالی ہم سب کو
तमाम जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से महफूज फरमा। आमीन। और बीमारी की जगह ये भी लिख सकते हैं कि गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया है। पर हमारे यहाँ एक देखा गया कि जिसको बुखार हुआ ना या खांसी भी हुई तो मतलब सबको बताते हुए जाएगा, यार मुझे बुखार हो गया, मुझे खांसी हो गई, दुआ करो। वो दुआ का बोले नहीं बोले पर सबको बताता हुआ जाएगा। हमदर्दी लेनी होती है। अब शिफा तो उससे मिलनी नहीं है, शिफा देने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है। तो ये भी नहीं करना चाहिए। हाँ, यही है, शिकवा शिकायत ना करें, बल्कि तो सब्र के मुनाफी है, सब्र करें। बल्कि हमारे बाज़ बुजुर्ग के बारे में आता है कि वो तो जब बीमार होते थे तो छुप जाते थे, गारों में चले जाते थे ताकि लोगों को पता ना चले, लोगों के सामने कोई इस तरह की बात ना हो जाए जो सब्र के मुनाफी हो। और अल्लाह पाक को शुक्र अदा करते थे कि या अल्लाह तूने हमें बीमार किया, तेरा शुक्र है, हमारे गुनाहों की बख्शिश का जरिया बन गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मिस्र राजों की सरजमीन कहानी सिलसिला आजकल प्रोग्राम भी आ रहा है। जी जी, अब्दुल हबीब भाई का। जी जी, कहानी इसको राजों की सरजमीन क्यों कहते हैं? असल में मिस्र को देखें ना तो ये हमारे इस्लाम में भी इसकी बड़ी अहमियत रही है। अंबिया कराम, औलिया कराम, फिर इल्मी हवाले से बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हमारा वहाँ पर मौजूद है। तो ये अब्दुल हबीब का सिलसिला देखेंगे तब भी इंशाअल्लाह ताला इस बात की तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भी मिस्र में ही थे। मिस्र में। जी, कहानी बच्चों को अच्छी लगती है। आंखें अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। अंधेरा उजाला। रोशनी इल्म एक रोशनी है। आपके भी 10 अल्फाज पूरे हुए। अब माशाअल्लाह। हमारे हसन भाई से करते हैं। माशाअल्लाह। बारिश मानसून। बारिश के पानी वो अपना सुना है शिफा है। बारिश का बड़ी शिफा। अगर कोई बीमार पिए तो उम्मीद है शिफा मिलेगी। जी इंशाअल्लाह। इसके बारे में ये है कि फौरन जब बारिश बरसना शुरू होती है तो फौरन वो जो बारिश शुरू में हुई है ना तो वो ना उसका पानी इस्तेमाल ना करें। जब कुछ बरस जाए ना तो इसके बाद फिर उसका पानी इस्तेमाल करना चाहिए। गर्दो गुबार, मिट्टी वगैरह होती है, वो सफाई हो जाए इसके बाद पीना चाहिए। चले हसन भाई, आपका दूसरा लफ्ज है आसमान। नीला। बड़ा भाई छोटा भाई। जी, हसन भाई के वर्ड्स पूरे हुए। अब हमारे मुश्ताक भाई की तरफ चलते हैं। मुश्ताक भाई, आपका पहला लफ्ज है बादल। बारिश। चिल्लाना। आराम से बात करना। नाश्ता। नाश्ता करना चाहिए। इनके भी अल्फाज पूरे हुए। जी हसन भाई, कैसा रहा ये सेगमेंट पहला हमारा? जी, ये पहला सेगमेंट तो बहुत अच्छा रहा। प्यारे बच्चों, सब हमारे जो मेहमान हैं इन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए और आपको उम्मीद है इससे सीखने को मिला होगा। मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में ही बताया था कि इसमें कोई विनर नहीं होगा। ये सिर्फ एक मकसद है आप बच्चों तक अच्छी बातें पहुंचाने का, एक अलग से एक खूबसूरत से तरीकों में। आइए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कहानी। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। अब मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, फिर इसके बाद आखिर में हुसैन भाई आपसे क्वेश्चंस करेंगे, तो उम्मीद है आप लोग गौर से सुनेंगे। प्यारे बच्चों, ये कहानी है एक नन्ही मुन्नी सी बटरफ्लाई तितली की, जिसको अपने खूबसूरत पर बहुत ज़्यादा पसंद थे, अच्छे लगते थे। उसको क्यों ना लगे खूबसूरत, क्योंकि थे ही उसके इतने प्यारे पर। उसके पर पता है कौन से कलर्स के थे? उसके पर मल्टी कलर्स के थे, 3 कलर के थे। उसके परों में कहीं ब्लू ब्लू सर्कल्स थे, कहीं रेड रेड डॉट्स थे और कहीं ग्रीन ग्रीन लाइनें थीं। लेकिन इस खूबसूरती ने इसको कुछ मगरूर सा बना दिया था। वो जब भी अपनी हमसाई तितली को उड़ता हुआ देखती तो उस पर हंसती और उसका मजाक उड़ाती। क्यों? क्योंकि उसका कलर ब्लैक था। अब प्यारे बच्चों, किसी तितली का या किसी इंसान का कलर ब्लैक है तो वो उसकी खुद की मर्ज़ी से तो नहीं हुआ। ये तो अल्लाह ताला की कुदरत है कि किसी को गोरा बनाए, किसी को काला बनाए या किसी को खूबसूरत पैदा फरमाए। प्यारे बच्चों, अभी ये बात नन्ही सी तितली की समझ में नहीं आई थी। वो सुबह शाम बाग में उड़ती और जब भी उसकी नज़र उस काली तितली पर पड़ती तो उसको देखकर हंसती और उसका मजाक उड़ाती। एक सुबह परिंदे गुनगुना रहे थे अपनी अपनी आवाज़ों में। कोयल अपनी आवाज़ निकाल रही है, चिड़िया अपनी आवाज़ निकाल रही है, कबूतर अपनी आवाज़ निकाल रहा है। तो वो नन्ही सी तितली उठी और अंगड़ाई लेते हुए बोली कि मैं कल तो एक नए बाग में जाऊंगी जो इसके बराबर में था। सुना है वहाँ के पिंक फ्लावर्स का रस, जूस बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अब जब वो वहाँ पर पहुँची तो उसने देखा कि वहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े पिंक फ्लावर्स थे। वो उड़ी और एक पिंक फ्लावर पर जाके बैठ गई। अभी वो रस चूस ही रही थी कि इसको महसूस हुआ, उसको फील हुआ कि मेरे ऊपर कोई साया, मेरे ऊपर किसी का शैडो आ रहा है। इसने जब मुड़ के देखा तो ऊपर एक कीड़ा था जो उसको खाने के लिए इसके आसपास घूम रहा था।
प्यारे बच्चों, जैसे ही उसने देखा तो तितली फौरन नीचे की तरफ आई कि अपनी जान तो बचाऊं उससे। लेकिन प्यारे बच्चों, नीचे आते हुए उसका सीधा विंग, उसका जो राइट विंग था, सीधा पर था, वो कांटे में उलझ गया और फंस गया। अब क्या था, ऊपर कीड़ा और इधर पर फंसा हुआ। उसने फौरन जान लगाई कि मैं कोशिश करूं कि इस पर को निकालूं, पर प्यारे बच्चों वो पर टूट गया। उस नन्ही सी तितली की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसको इतना दर्द कभी नहीं हुआ था। अब उसने कोशिश की कि थोड़ा उड़ूं, पर वो उड़ ना सकी। फिर भी जितना उड़ी वो उड़कर एक झाड़ियों में गिर गई। अब काफ़ी देर वो दर्द से वहाँ झाड़ियों में छुपी रही, बैठी रही। इतने में इत्तेफाक से वो काली तितली वहाँ से गुजरी। प्यारे बच्चों, अब हुआ क्या कि वो जो खूबसूरत तितली थी वो बिल्कुल उसका पर टूट गया, वो तो उड़ने के काबिल भी नहीं रही। अब जब काली तितली ने उसको देखा कि ये बीमार है, इसको तकलीफ़ हो रही है, तो ये उसको उठा के अपने साथ अपने घर ले गई। इस बात को उसने साइड में रख दिया, इस बात को वो भूल गई कि इस नन्ही तितली ने इसको कितना बुरा भला कहा था। जब भी वो उड़ती थी बाग में तो वो क्या करती थी प्यारे बच्चों, उसको देखकर हंसती थी, उसके ब्लैक कलर पर उसका मजाक उड़ाती थी। लेकिन उसने इस बात को साइड में रखा, भूल गई और उस नन्ही सी तितली की खूब खिदमत करती। डेली सुबह उसके पास आती, उसको धूप में बिठाती। जब अपना खाना लेने जाती तो उसका खाना भी अपने साथ लाती। कुछ ही दिनों में, कुछ ही टाइम में उस नन्ही तितली का नया पर आने लगा और वो उड़ने के काबिल होने लगी। अब प्यारे बच्चों, क्या था, वो नन्ही तितली जिसके खूबसूरत पर थे वो तो बहुत शर्मिंदा हो गई। फिर मैंने क्या किया, मैं तो इस काली तितली की इतनी बुराई करती, इसको इतना बुरा भला बोलती, पर जब मैं बीमार हुई, जब मुझे इतनी तकलीफ़ हुई, जब मुझे किसी की ज़रूरत थी, तो इसने इस बात को भूल गई कि मैंने इसको कितना कुछ बुरा भला कहा। वो मेरी खिदमत करती रही। अब प्यारे बच्चों, जब वो काली तितली उड़ के वापसी अपने घर जाने लगी तो उसने पिंक फ्लावर्स का रस उस प्यारी सी नन्ही तितली को दिया और कहा, इसे पियो, सेहत बनाओ और आराम करो। काली तितली के इस प्यार भरे सलूक ने नन्ही तितली के आंसू ही निकाल दिए। इसने काली तितली का बेहद शुक्रिया अदा किया और दिल में अल्लाह पाक से वादा किया कि वो अब किसी का मजाक नहीं उड़ाएगी। वो जान गई थी कि बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है और बुरे कामों की सज़ा मिलकर ही रहती है। प्यारे बच्चों, हमारे अतराफ़ में, हमारे घर में, हमारे क्लास में, हमारे पड़ोस में, मोहल्ले में बाज़ औक़ात ऐसे बच्चे होते हैं, किसी के पाँव पे चोट होती है, किसी की आँख का कोई मसला होता है, कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई वाकई ब्लैक कलर का है, ठीक है ना। तो अब बताएं आप प्यारे बच्चों, क्या कोई बच्चा खुद इस तरह पैदा हुआ? नहीं ना, ये तो अल्लाह ताला की कुदरत है। तो क्या हम मजाक उड़ाएंगे किसी का? इस नन्ही तितली ने देखा प्यारे बच्चों मजाक उड़ाया तो इसको सज़ा मिली इसकी। तो आप भी नियत करें, आप भी कोशिश करें कि कभी किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे। अगर कोई कद में छोटा है तो उसको बुरा भला नहीं कहेंगे, अगर कोई कद में लंबा है तो उसको बुरा नहीं कहेंगे, अगर कोई मोटा है तो उसको भी बुरा नहीं कहेंगे। आइए आप बढ़ते हैं हुसैन भाई की जानिब। इन्होंने सवालात रेडी रखे हुए हैं और देखते हैं हमारे मेहमानों ने कितनी गौर से ये वाक़या सुना है। जी सबसे पहले करते हैं, मैं अपना पहला सवाल करने जा रहा हूँ ओएस भाई से। नन्ही तितली को अपनी किस बात पर नाज था और उसको कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी? नन्ही तितली को इस बात पर नाज था कि वो अपने जो पर थे, अपने खूबसूरत पर थे, उस पर नाज करती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले हसन भाई, वो अपनी पड़ोसी काली तितली के साथ क्या करती थी? उसकी जो पड़ोसी तितली थी वो उसका मजाक उड़ाती थी, क्योंकि उसका रंग ब्लैक था, उस वजह से वो मजाक उड़ाती थी और उसको बुरा भला कहती थी। बिल्कुल। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले यूसुफ भाई, अब आपसे सवाल कर रहा हूँ मैं। आसान कीजिएगा। नहीं जी, अब मैं आपसे आप मुश्किल करूँगा। अल्लाह अकबर, अगेंस्ट में जा रहे हैं आप। एक दिन सुबह नन्ही तितली ने क्या कहा? सुबह नन्ही तितली ने कहा कि मैं अगले दिन बराबर वाले बाग में जाऊंगी और पिंक कलर के फूलों का रस चूसूंगी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले अब मुश्ताक भाई आपसे सवाल कर रहा हूँ मैं। साथ वाले बाग के बारे में तितली ने क्या सुना था? कि वहाँ पे जो पिंक फ्लावर का जूस बहुत मज़ेदार होता है।
जी आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बस भाई अब आपसे वापस कर रहा हूँ मैं। लब्बैक। नन्ही तितली ने उस बाग में जाकर क्या किया? नन्ही तितली ने उस बाग में जाकर वो पिंक जो फ्लावर था उस पर जाकर बैठ गई। माशाअल्लाह। आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। इसके बाद क्या हुआ? जैसे ही वो रस चूसने लगी, उसको एहसास हुआ कि उसके ऊपर कोई साया, कोई शैडो जो है वो मंडला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल माशाअल्लाह। आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। वो किसका साया था और उसके बाद नन्ही तितली ने क्या किया? वो साया एक कीड़े का था जो उस तितली के ऊपर पड़ रहा था। जब उसने महसूस किया, उसे खौफ लगा, खौफ महसूस हुआ, तो उसने अपनी जान बचाने के लिए जब नीचे की तरफ वो गई, उस कीड़े के खौफ की वजह से जान बचाने के लिए जब नीचे की तरफ गई, तो किसी कांटे में फंसकर उसका पर टूट गया। सुभान अल्लाह। आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आपसे सवाल है कि नन्ही तितली का जब पर टूट गया था और वो झाड़ियों में गिर गई थी, तो उसकी मदद किसने की थी? वो जिस तितली, काली तितली का मजाक उड़ाती थी, उसने उसकी मदद की और वो तितली अपने साथ उसको अपने घर ले आई। बिल्कुल बिल्कुल इनका माशाअल्लाह। जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें वैस भाई आपसे, वो काली तितली उसके लिए क्या करती थी? जो नन्ही तितली थी उसके लिए क्या करती थी? काली तितली जो थी वो नन्ही तितली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। बिल्कुल। जब अपने लिए खाना लेने जाती तो उस नन्ही तितली के लिए भी खाना लाती। बिल्कुल ऐसा ही है। जी। और उसको धूप में भी बिठाती थी। और धूप में भी बिठाती थी। जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। यूसुफ भाई आपसे आखिरी सवाल कर लेता हूँ। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी से सबक ये मिलता है कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें हमें दी हुई हैं उस पर गुरूर ना करें, तकब्बुर ना करें, और दूसरों के पास अगर वो नेमत नहीं है तो उनको हकीर भी नहीं समझना चाहिए। मतलब इसको आप कैसे समझाएंगे? मतलब गुरूर किस तरह का? मतलब देखें, एक वो जो नन्ही तितली थी ना, खूबसूरत पर थे उसके, और दूसरी तितली के पर काले थे। बिल्कुल। तो वो अपनी खूबसूरती पर गुरूर करते हुए दूसरी जो काले परों वाली तितली है उसको हकीर समझती है। तो अल्लाह पाक को तो ये चीज़ नापसंद है हकीर को ना। आसान में क्या करेंगे? हैं? हकीर को हकीर कमतर समझना, अपने से कम समझना, अपने से कमतर समझना। तो वो अपने से कमतर समझना, हकीर समझना, ये नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक ने आपको जो नेमतें दी हैं उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए माशाअल्लाह। और दूसरों को कभी भी हकीर नहीं समझना चाहिए। हो सकता है अल्लाह पाक ने उसको कोई ऐसी नेमत दी हुई है जो आपके पास ना हो, और हो सकता है अल्लाह पाक की बारगाह में उसका मकाम हमसे ज़्यादा हो। इसीलिए कभी भी इसमें बड़े एक खूबसूरत बात ये भी हमें सीखने को मिलती है कि देखिए, असल चीज़ होती है दिल। ज़ाहिरी खूबसूरती कुछ भी नहीं है, दिल खूबसूरत होना चाहिए। उस काले परों वाली तितली का दिल खूबसूरत है। हालांकि उस नन्ही तितली ने उसको कितना कितना सताया, मजाक उड़ाया, लेकिन इसके बावजूद देखें उसने उस पर रहम किया है, उस पर मेहरबानी की है और उसकी जान बचाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे यूसुफ भाई ने हमें बहुत प्यारा सबक बताया। किड्स चैनल के नाज़रीन, अब ये वाला सेगमेंट इख्तिताम हुआ है और इसके अंदर मैं अब सेगमेंट का विनर बताने के लिए जा रहा हूँ। इस सेगमेंट के जो विनर हैं वो हमारे यूसुफ भाई और उनके पार्टनर मुश्ताक भाई हैं। माशाअल्लाह। आपको बहुत बहुत मुबारक। जज़ाकल्लाह खैर। खैर मुबारक। अभी और भी 3 सेगमेंट पड़े हुए हैं, हिम्मत रखें। इनको मैंने प्रोग्राम की स्टार्ट में दे दी थी कि कोई नहीं हारेगा। आपको तसल्ली दे रहे हैं हुसैन भाई, हिम्मत रखें आप। आइए प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है किस्मत आजमाएं। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों, अब हम आ चुके हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी की जानिब, नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है किस्मत आजमाएं। इसमें क्या होगा? इसमें है 8 बॉक्सेस, ठीक है। हर बॉक्स के अंदर कुछ लिखा हुआ है और मेरे पास उसके हिंट्स हैं। सेगमेंट का नाम है किस्मत आजमाएं। एक हिंट लेके किस्मत आजमाएं या सारी लेके आजमाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप दोनों पार्टनर हैं, एक दूसरे की हेल्प करके एक दूसरे से मशवरा करके आप किस्मत आजमाइएगा अपनी। आइए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारे उवैस भाई से और हसन भाई से।
8 बॉक्सेस हैं, पहला बॉक्स सेलेक्ट कीजिए जी। कोई भी सेलेक्ट कर सकते जी हैं। नंबर 3, थर्ड। नंबर 3। ओके लकड़ी का भी होता है और लोहे का भी। स्टूडियो। यहाँ पे लकड़ी भी है, लोहा भी। बिल्कुल आपका जवाब पर दुरुस्त नहीं है। हमारे यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो कुछ और लिखा हुआ है। आपको हमारी चीज पे पहुंचना। अच्छा चलें, ठीक। अगले एंड लेंगे, जैसी पे खोलते हैं कुछ ना कुछ। किस बार नजमाए? स्टूडियो में भी खोल सकते हैं आप। कमरे में जाने के लिए वहां से जरूर गुजरना पड़ता है। सैनिटाइजर गेट तो नहीं है? दरवाजा। 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 एक और एंड लेंगे। नहीं, दरवाजा। हमें इजाजत है जवाब देने की? नहीं, जब आप बोलते हैं ना एक और हिंट दे तो मतलब वही होता है जवाब। दरवाजा ही है। अच्छा चलें खोल दूं पक्का? जी खोल। जी हुसैन भाई बॉक्स खोलिए। क्या इसमें इन्होंने जो कहा दरवाजा वो है लिखा हुआ? जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। आइए अब हमारे यूसुफ भाई की जानिब बढ़ते हैं। जी यूसुफ भाई और मुश्ताक भाई। 4 नंबर का 4 यार की निस्बत से 4 यार की निस्बत से 4 नंबर बॉक्स। हाँ श्योर क्या? बॉक्स नंबर 4। वो एक दिन है। जुमा। कंफर्म? खोल दे, बिल्कुल खोल। जी क्या ये लिखा? जुम्मे का दिन है। जुमा का दिन। जी नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट बॉक्स। चल मदीना की निस्बत से 7 नंबर। सुभान अल्लाह। जी हसन भाई, जिस्म का एक टुकड़ा है, अच्छा, बॉडी पार्ट। दिल। माशाल्लाह। माशाअल्लाह। जी क्या ये दिल है? एक मिनट रुक जाए। दिल। पार्टनर, पार्टनर आप पार्टनर देखे मुत्तफिक। खोल दे, इन्होंने कह दिया खोल दे भाई। मना करें पार्टनर तो हसन मैंने रोक दिया। देखे मैंने अर्ज की थी क्या ये दोनों मुशावरे से चले। अब अल्लाह ना करे अगर इसमें दिल नहीं हुआ तो हसन भाई बोलेंगे मुझसे तो पूछा ही नहीं। लेकिन अगर हुआ तो ये खुश हो जाएंगे कि देखें जो ना मैंने कहा था और निकल आया वही। मशवरा कर लें अगर ऐसे मैं श्योर हूँ। आप मशवरा कर लें, दिल अगर ये बोलते हैं ओके। ठीक है। चले भाई चले जल्दी। माशाअल्लाह। वो दिल लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। इनका जवाब बिल्कुल अरे वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किस्मत आजमाई और दिल में जो आया देखें वो अदा कर दिया ज़बान से और दिल पे ही पहुंचे माशाअल्लाह। किस्मत पहले हिंट में आइए बढ़ते हैं जी। किस्मत अच्छी किस्मत है। अच्छी है। आजमा और लेना हम पहली हिंट में पहुंच गए। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे दे। जी यूसुफ भाई और मुश्ताक भाई, नंबर 1। क्या आपने नंबर देखा 1 तो नहीं क्या है इसमें? नंबर 1 खोले हुसैन भाई। पहले आप हिंट तो ले लें। हिंट बगैर के खोलेंगे नंबर 1। एक जानवर है, एनिमल है। दूसरा हिंट है, हमारे पार्टनर कह रहे हैं कि दूसरा हिंट है आप। इनकी खुराक खून है, मतलब वो खून खाते हैं, खून पीते हैं, उनका खाना ही यही है। मच्छर। क्या इसमें मच्छर है? का? मच्छर फाइनल कर दें भाई। मच्छर फाइनल कर दिया है। मॉस्किटो। मस्किटो। जी देख लें। हुसैन भाई खोल दें, क्या इसमें मॉस्किटो है, मच्छर है? जी पक्का खोल दूं? अभी भी वक्त है आपके पास। खोल दे। पक्का चलें। कंफर्म है आप? चलें चलें हुसैन भाई चलें। बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह। इनका जवाब अच्छा बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह। माशाअल्लाह। आपके जहन में क्या आएगा? यही था। ये मच्छर भी जो है ये भी एक जानदार ऐसे है। तो कीड़ा है। जानदार है बेसिकली, तो ये कीड़ा है पर इसको भी आप जानवर कह सकते हैं। बिल्कुल जानदार है ये। इस तरह पहले 2 हिंट में, जी जी। 2 हिंट में यूसुफ भाई और मुश्ताक भाई अपने जवाब पे पहुंचे हैं। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट बॉक्स की जानिब। जी हसन भाई, ओवैस भाई, फॉर्म में आप लोग बिना देखे आपको डब्बे के अंदर नजर आ रहा है कुछ? 5। जी 5। बगैर हिंट के है कौन जवाब। सा? 5 5 है कौन सा? पहली हिंट मुसलमानों में होता है। मुसलमानों में होता है। अब आपके ध्यान में कुछ आ रहा है? मुसलमानों में होता है खास। यहाँ पे लिखा हुआ है तो खास मुसलमानों में ही होता है।
जी नेक्स्ट हिंट, नेक्स्ट हिंट ले लें क्योंकि आपने भी तो कोई डिसीजन तो लिया नहीं है, आपके जहन में कुछ आ रहा है? खास तौर पर मुसलमानों में होता है और जी किसी में जी, और इंसानों जो मुसलमान होगा उसी में ये चीज़ होगी। रमजान और सलाम और क्या आदाब, मुसलमानों में रमज़ान का होता है, सब में आता है। कुरान का अदब व एहतराम। बिल्कुल बोल सकते हो आप, मुसलमानों में ही कुरान का अदब व एहतराम होता है। हैंड हिंट, हैंड दे दें। एक मिनट अगर आपको जवाब देना है तो बिल्कुल आप करें, अगर कुछ जहन में आ रहा है आपके तो फिर बताएं। माशाल्लाह जवाब देने जा रहे हैं। माशाल्लाह पहले हिंट पर जवाब देने जा रहे हैं। अल्लाह का डर, अल्लाह का डर। या इसको खौफ खुदा भी कह सकते। एक चीज़ बताएं, खौफ खुदा या मुसलमान अल्लाह का डर। अल्लाह का डर, एक और हिंट ले लें, अल्लाह का डर। अल्लाह फाइनल कर रहे हैं भाई। जी हुसैन भाई जी, पहली हिंट में इन्होंने कहा अल्लाह पाक का डर। क्या इसमें अल्लाह पाक का डर लिखा हुआ है? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक का डर। ओहो इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और ये हकीकत है कि सिर्फ मुसलमानों में ही होता है, सिर्फ इन्होंने किस्मत आजमाई और आपस में कुछ देर की मुशावरत के बाद, मशवरे के बाद सही नतीजे पर पहुंचे माशाअल्लाह। इस वक्त हुसैन भाई ये टीम आगे है। जी यूसुफ भाई, भाई नेक्स्ट बॉक्स 5 7 6 और 2। 6 नंबर 6, 2 और 8 भी बाकी है। 6 नंबर खोलें भाई। पहले हिंट पे जवाब देंगे इंशाल्लाह। कौन? मुकाबले पर है हम लोग। पहनने की चीज है। पहनने की चीज है। जी मुश्ताक एक भाई, भी या दूसरा हिंट ले लें, देंगे? क्या फरमा रहे हैं फाइनल आप? करें या क्या दूसरा हिंट फरमा रहे हैं लेंगे? वैसे? एक हिंट पे जवाब देना वैसे चाह क्या फरमा रहे हैं? चश्मा। दूसरी हिंट अर्ज करूं? जवाब देना चाह रहे हैं एक ही पर फाइनल। मैं आप बोले चश्मा, मैं तो अभी आपके लिए बॉक्स खुलवा दूंगा। आप बोले हिंट, मैं आपको अभी हिंट बता अभी दूंगा। मैं खोल देता हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग किस्मत आजमाएं। खोल दूँ बॉक्स? एक मिनट हुसैन भाई, एक मिनट जी। मुश्ताक भाई कह रहे हैं फाइनल करें। पक्का चलें। चश्मा, आ जाए। चश्मा। माशाअल्लाह, देखिए आप मुकाबला हुआ ना, आप आ गए प्रेशर में। आप देखें आखिरी बॉक्स, इनका नेक्स्ट बॉक्स। माशाअल्लाह मुश्ताक भाई, वेरी गुड, इम्प्रेसिव जी। 8 बॉक्स नंबर 8 की पहली हिंट, ये दिल में पैदा होती है नफरत, दिल में पैदा होती है। हसद, ये बड़ा आपने हो रियाकारी, बदगुमानी, अल्लाह पाक की मोहब्बत। क्या बात की, मोहब्बत भी दिल में पैदा होती है, उसी दिल में नफरत भी पैदा होती है, सही बात है। उसी दिल से रियाकारी भी आती है। दूसरा हिंट देते हैं। दिल में पैदा होती है। पुराने पाक की मोहब्बत ही उसी दिल में पैदा होती है। क्या बात की हुसैन भाई, इसी दिल में जानवरों की मोहब्बत भी पैदा होती है, दूसरा हिंट मेरे ख्याल देते इसी दिल में इल्म दीन की मोहब्बत भी पैदा होती है। हसन भाई पहले भी यही हुआ, काफ़ी देर तक मशवरा करते रहे और पहले हिंट में जवाब दे दिया। इस बार क्या होता है ये हम देखना चाहेंगे, क्योंकि इनका है लास्ट बॉक्स जी। ये दिल में पैदा होती है। दूसरी हिंट, ईमान इसके बगैर अधूरा है। अगला है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ का हुक्म इरशाद फरमाया, मतलब दिल में पैदा होती है, ईमान इसके बगैर अधूरा है, नामुकम्मल है, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म भी दिया है। अब आपके लिए थोड़ी रास्ता जो है वो आपके लिए अब खुला हुआ है थोड़ा सा। उवैस भाई को तो ज्यादा इसका वो हो इदराक होना चाहिए। उवैस भाई माशाल्लाह। जी उवैस भाई, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चलती गाड़ी रास्ते में फंस गई है। भाई 3 हिंट इन्होंने ले लिए, हमने अब तक 3 हिंट इन्होंने अब तक 3 हिंट नहीं लिए, किसी ने भी नहीं, हमने भी नहीं लिए। तो हमने भी दो एक ही इन पे खुलवाए। आपने तीसरा हिंट ले लिया ना। अब क्या पता ये अगली बारी में ना ले, पहले हिंट में खुलवा ले, तो ये सेगमेंट किसका हो जाएगा ये फिर? भी हो सकता है कि ये खुलवा ही ना पाए। बिल्कुल ऐसा, आप जाहिर सी बात है आप सोचेंगे आप सामने वाले ना जी। भाई वक्त महदूद। वक्त, अब आपको मैं चौथी हिंट देने जा रहा हूँ। साहिबा कराम अलैहिम रिदवान के दिल में ये बहुत ज़्यादा थी। मोहब्बत रसूल।
मोहब्बत रसूल जी, चौथी हिंट में इन्होंने कहा मोहब्बत रसूल, बहुत ज़्यादा वाजे हो गया आप जी, और ये मोहब्बत रसूल माशाअल्लाह। मोहब्बत रसूल। 4 हिंट मुकम्मल हो ही गई आखिर, माशाअल्लाह जी। अल्लाह पाक हमें मोहब्बत रसूल अता फरमाए। 2 नंबर खोलने से चले बगैर इनके खोल दूं? बगैर हिंट के खोल सकते हैं आप। पहली हिंट खाने की चीज़ है यूसुफ भाई, पहली हिंट में खाने की चीज है। गुड। यूसुफ भाई पहली हिंट में खोलें। बोल दे मेरी बिरयानी तो नहीं? 2 गलत हो जाएंगे वरना फिर। अगर 2 गलत हो गए इन लोगों के, यूसुफ भाई की टीम के अगर 2 गलत हो गए तो ऑटोमेटिकली इनका जो है वो वजन भारी रहेगा माशाल्लाह। दूसरा और हिंट दे, पूरी उम्मीद है ये लोग जी। दूसरा हिंट दे दे। दूसरी हिंट दे दे। बिक रहा है आपका हिंट, बिक रहे हैं आपके। हेल्दी होते हैं, हेल्दी होते हैं, हेल्दी सेहत होते हैं। सेहत सेहत के लिए फायदेमंद है। आजकल मिल रहे हैं मार्केट में। ये आपको पूरे साल मार्केट में मिलेंगे। सर्दी के मौसम में भी आते हैं तो कुछ गर्मी के मौसम में भी आते हैं। ये तो पूरे साल भी हो। तो मैंने तो आपको अर्ज किया पूरे साल होते भी, मैंने तो पहले भी अर्ज किया। फल, फल सही है। फल जी। फल खोल ले। चौथी हिंट पे इन्होंने कहा फल। सर हमने हुसैन तीसरे भाई पे कहा था फल। नहीं आप मेरा जवाब अगर आप सुन लेते तो हो जाता। केले। वैसे इन्होंने ये फल पहले भी कहा था, तीसरी हिंट में आपने फरमाया था ना, इन्होंने फिर भी चौथी हिंट ली। हमारा काम हुसैन भाई यही है। बिल्कुल आप खोलें, जीता तो कोई नहीं। फल 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 खोलें। डब्बे में क्या है? इनका जवाब लाइट फरमाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये एक्टिविटी हमारी पसंद आई होगी। इस एक्टिविटी के बारे में हमें यूट्यूब पे फीडबैक दीजिएगा। आइए चलते हैं हुसैन भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि इस सेगमेंट का विनर ये इनके ख्याल में कौन है जी। मेरे ख्याल से इस सेगमेंट के जो विनर है वो हमारे उवैस भाई और उनके पार्टनर हसन भाई हैं। हमारा वोट भी इन्हीं के लिए है। आइए बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, नेक्स्ट एक्टिविटी की जानिब, जिसका नाम है अशार चैलेंज। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। जी उवैस भाई, यूसुफ भाई, इसमें होते हैं 3 मरहले जी। पहला मरहला ये है कि इसमें हम जो है आपको पहला शेर सुनाएंगे, आपको अगला मिसरा पूरा पढ़ के कंप्लीट करना है जी। दूसरा इसका मरहला ये है कि आपको हम दूसरा शेर सुनाएंगे, आपको पहला मुकम्मल करना है, पहला पढ़ना है। तीसरा ये है कि हम आपको शेर सुनाएंगे, आपको कंप्लीट करके बताना है कि ये शेर किस शायर का है। ये तो तो 3 हम नाथों तो नहीं है, फिर हमें बेनिफिट क्या है? इससे पहले भी जो मुकाबले हुए उसमें भी ये कहाँ नहीं थे, कहाँ थे। सर यही है आपका इम्तिहान, आपको दावत दी है और आप इसमें, आपको पता है इसमें हार जीत तो है नहीं, सीखेंगे सिखाएंगे इंशाल्लाह। चैंपियन मौजूद है जी उवैस भाई। बेताब हूँ बेचैन हूँ दीदार के खातिर, लिल्लाह मेरे ख्वाब में आ जाइए आका। लिल्लाह मेरे ख्वाब में आ जाइए आका। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तू वली अपना बना ले उसको रब्बे लम यजल, मदनी इनामात पर करता है जो भी अमल। मदनी इनामात पर करता रहे जो भी अमल। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार, मदनी चैनल से हमें क्यों वालेहाना होना प्यार। मदनी चैनल से हमें क्यों वालेहाना होना प्यार। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी। अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे मरहले की जानिब। इसमें मैं आपको पहला मिसरा सुना। दूसरा मिसरा सुनाऊंगा, आपको पहला पढ़ना है। सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गैसू, तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से। माशाल्लाह। तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रहा रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे। सितारे गैसू। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त
حسین بھائی اس شعر کو اگر طرز میں سنا دے تو مدینہ مدینہ جی. تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے گیسو. جی یوسف بھائی، نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے. جی نہ تواں پہ اتنا بوجھ بھاری، واہ واہ. واہ واہ. ان کا جواب بالکل درست ہے. جزاک اللہ. گناہوں کی دور ہو دل سے سیاہی، تلاوت کی توفیق دے یا الہی. تلاوت کی توفیق دے یا الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی. ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ عز و جل. جی یوسف بھائی، اویس بھائی، اب ہم بڑھ چکے ہیں اپنے تیسرے مرحلے کی جانب اور لاسٹ مرحلہ ہے سیگمنٹ کا، جس میں آپ کو شعر مکمل کر کے یہ بتانا ہے یوسف بھائی اویس بھائی کہ یہ شعر کس کا ہے اور شعر مکمل بھی کرنا ہے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، واہ. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے. واہ ماشاء اللہ. جی سیدی کس کا اعلیٰ کلام ہے؟ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی. ماشاء اللہ. اور ان کا جواب حسین بھائی بالکل درست ہے. کیسا ہے پیارا پیارا یہ سب سبز گنبد، کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھے نبی کا روزہ. کس کا شعر ہے؟ اعلیٰ. یہ امیر اہل سنت کا شعر ہے. پہلے انہوں نے آپ لوگ آپس میں مشورہ کر لیں. نہیں، پہلے آپ نے جواب دیا. امیر اہل سنت کا ہے جی. کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد، کتنا ہے میٹھا میٹھا میرے نبی کا روزہ. اور ان کا جواب بالکل درست ہے. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ. ماشاء اللہ. کس کا کلام ہے؟ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اور ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. سبحان. بے تاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر. للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا، بے شک آ امیر اہل سنت کا شعر ہے. ماشاء اللہ. ان کا جواب ماشاء اللہ سے درست ہے. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا. ماشاء اللہ. امیر اہل سنت کا. سبحان اللہ. اور ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی پورا ہوا اور ماشاء اللہ دونوں ٹیموں نے بھرپور اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور بھرپور اچھے اچھے جواب دیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین دنیا کی بھلائیاں اور برکتیں نصیب فرمائے. پیارے بچوں، اس سے پہلے ہم اپنی لاسٹ ایکٹیویٹی کی جانب بڑھے، لاسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھے. آئیے ہم اویس بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں. جی ماشاء اویس اللہ بھائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، نانا اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. زہرا پاک کے صدقے میں، زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا،
حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا، بار 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 آؤں بنے آخر مدینے میں مزار، بار بار آؤں بنے آخر مدینے میں مزار، آغا پلے زر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں، آغا پلے زر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں، تمہیں بلا لو یا رسول اللہ، تمہیں بلا لو، تمہیں بلا لو آقا، تمہیں بلا لو، تمہیں بلانے پر وہ قادر یا نبی ہے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، نانا اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، گنبد خضرا کے جلوے دیکھنے کب آؤں گا، کب تلک تڑپاؤ گے تم مجھ کو آخر یا نبی، کب تک کب تڑپاؤ گے تم مجھ کو آخر یا نبی، آپ ہی اسباب آقا اب مہیا کیجئے، آپ ہی اسباب آقا اب مہیا کیجئے، اب دکھا دیجئے یا رسول اللہ، اب دکھا دیجئے مدینے کے مناظر یا نبی ہے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، جو مدینے کے لیے رہتے ہیں آقا بے قرار، وہ بھی ہو جائے تیرے روضے پہ حاضر یا نبی، آغا میرا کیا بنے گا، آغا میرا کیا بنے گا، آغا میرا کیا بنے گا، گر نہ حج پر جا سکا ہو کرم عطار پر یا رسول اللہ، ہو کرم عطار پر ہو جائے حاضر یا نبی ہے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے میں، زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام آپ نے ہمیں سنایا جی۔ پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں ہمارے نیکسٹ ایکٹیویٹی کی جانب، نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے پکچر پہچانیے۔ آپ کا امتحان، آپ کا امتحان۔
جی پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں اس ایکٹیویٹی کی جانب, سیگمنٹ کی جانب. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو 9 باکسز نظر آ رہے ہیں. اس کے پیچھے ایک پکچر ہے پر آپ سارے باکس نہیں کھول سکتے. ہم نے صرف یہاں پہ 4 باکس کھولنے کا آپشن رکھا ہے. آپ کو جو تصویر ہے, پکچر ہے, وہ آپ کو 4 باکسز کے اندر گیس کرنی ہے. 4 پکچر آپ کے لیے ہیں, 4 پکچر آپ کے لیے ہیں. اس میں بھی قسمت کا ہے. دیکھیں کس کے نصیب میں کیا آتا ہے. کسی کے پاس پیچھے کچھ بھی آیا, کعبہ آ جائے تو آپ تو فوراً پہچان جائیں گے. چلیں سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں. 5 نمبر. جی 5 نمبر. بچوں آج ہے آپ حجر اسود. جی انہوں نے 5 نمبر سلیکٹ کیا. اور حجر اسود. حجر اسود تو اس کے سائڈ میں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. حجر اسود. فائنل ہے آپ کا یہ حجر اسود. حضرت اسود. حجر اسود پہلی پکچر میں 5 نمبر. کیا کریں جی, پوری پکچر دکھائیے گا. آپ کا امتحان. ماشاء اللہ. اور ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مطلب آپ نے بہت اچھا نمبر سلیکٹ کیا. اب ایک اور پکچر دکھائیں یوسف بھائی کو اور مشتاق بھائی کو. جی مشتاق بھائی نمبر 5 کھولیں. نمبر 5. جیسی آپ کی مرضی. جی نمبر 5. کہانی ہے کیا کیا امتحان آج. پہچان گیا. چلیں میں بھی پہچان گیا ہوں اب تو یہ والی پکچر. جنت البقی. جنت البقی فائنل ہے. فائنل ہے, کنفرم ہے. جی جی 1 کھلوا ماشاء لیں. اللہ. 1 آپ کھلوانا چاہیں نہیں, آپ بولیں گے تو میں کھولوں گا, ورنہ آپ کا جنت البقی میں آپ کا آنسر لاک کر دیتا ہوں. لوگ کر دیں. جی لاک کریں. جنت البقی. پوری پکچر دکھائیں. کہانی ہے کیا کیا امتحان آج. ماشاء اللہ. اور ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ایک باکس میں ابھی تک یہ سیگمنٹ کا آغاز ہوا ہے. بہت اچھے انداز میں سیگمنٹ کا آغاز ہوا ہے. آئیے اب اپنی دوسری پکچر کی جانب بڑھتے ہیں. بغیر باکس کھلوائے بھی دے سکتے ہیں جواب. پہلے بھی 5 آپ نے کھلوایا. 5 اگین 5 اگین 5. 5. امتحان چلو دیکھے کون دے گا. جی میں پہچان گیا. جی آپ کیا پہچان گئے؟ وہ جو گاڑی سو ہاں کوشش کر رہے ہیں حسن بھائی. گاڑی سور. گارے سور. اور کچھ کھلوانا چاہیں گے؟ یہ وہاں پہ ہم زیارت کرنے گئے تھے. جی ٹائم ختم ہو رہا ہے. 10 5 4 3 2 second number. 1. سیکنڈ نمبر. سنانی ایک کہانی ہے کیا کیا امتحان. آسمان بادل. آسمان. دکھاؤ بھائی جیسے. کچھ پتھر رکھے ہوئے ہیں. 5 4 3 2 1. اور اس طرح آپ کی یہ تصویر رہ گئی. میں نے پوری پکچر دکھائیں. اب پوری پکچر ان کو دکھائیں. بچوں آج ہے آپ کا امتحان. ماشاءاللہ یہ جبل رحمت ہے, پر ہماری یہ ٹیم جو ہے پہنچ نہیں سکی اور ان کا ٹائم ختم ہو گیا. اس کے ساتھ یوسف بھائی کو موقع ملا آگے بڑھنے کا. جی نیکسٹ پکچر دکھائیں. نمبر 5. نمبر 5 مشتاق بھائی کہہ رہے ہیں نمبر 5. دیکھیں پھر 5 میں یہ بھی ہو جاتا ہے, غلط بھی ہو جاتا ہے جواب. بہت شریف کے لگ رہا ہے میں تو پہنچ گیا. یہ آسان جی ہے. ایک اور کھلوائیں. حاضری ہوئی ہے. ایک اور کھلوائیں. نمبر کھلوائیں 2 میرے خیال سے. 8 نمبر. کہانی ہے کیا کیا امتحان آج. بہت شریف کے پاؤں. کھجور کے درخت. جبل احد. جبل احد. پکچر پوری کھولیں. آپ کا امتحان. ماشاء اللہ. ماشاءاللہ. ان کا جواب بالکل درست ہے. اللہ پاک ہمیں یہاں کی حاضری بار بار. اللہ پاک ہمیں یہاں کی حاضری بار بار نصیب فرمائے. اسی کے ساتھ پیارے بچوں ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا.
मैं अपने मेहमानों का हसन भाई, उवैस भाई, यूसुफ भाई और मुश्ताक भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। हुसैन भाई, आप भी तशरीफ़ लाएँ, आपका भी शुक्रिया। इसी के साथ प्यारे बच्चों, अब हमें इजाज़त दीजिए। पर ये प्रोग्राम किसी एक का नहीं था, ये हम सब का प्रोग्राम था। उम्मीद है आपको इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान, बच्चों आज है आपका इम्तिहान, चलो देखे कौन देगा जवाब। बच्चों का मदनी चैनल